Welcome to the pre-match press conference ahead of Pakistan's clash with Scotland in Sharjah tomorrow. Present today is Mohammad Hafiz from the team, here to answer all your questions. Just a polite reminder to everyone to kindly keep themselves on mute and use the raise the hand function if you have a question. I am now going to hand over the session to Ibrahim to moderate. Thank you, Gitiki. Thank you, everyone, for joining us here. It's a pre-match press conference of Pakistan versus Scotland. Mohammad Hafiz is along with us. As the protocol, I will ask Hafiz bhai to give his opening statement, how the team is going on, how the training and the performance of Pakistan cricket team so far, and then we will open the question answer session. Just a polite reminder that please keep your questions to Pakistan cricket team and the match which is going to be held tomorrow. Hafiz bhai. Well, assalamu alaikum everyone. First of all, I hope you all are well. Regarding our campaign in this tournament, we are really happy and proud as a team. Like so far, we took this challenge and performed well up to the expectations, and we will try our level best to continue the momentum. So let's see how it goes. But so far, we are really happy as a team to perform well in this mega event, and looking forward to the challenge coming ahead of us. Thank you so much. Let's move to the question answer session. Shahid Hashmi, Rashid Shakur. Hafiz, as you said that the team is performing very well. So would you like to choose one from South Africa or Australia in the semi-final as your opponents? Well, to be honest, I'm a kind of a player who never thinks in this way when it comes to the game of cricket. Whoever comes in, you need to perform well. I personally believe, and we believe as a team, like we need to hit our boxes very well. We need to follow the process. So whichever opponent come in your way in a knockout stage or in any stage, you need to prepare accordingly and need to perform well. So we as a team looking very, very good at the moment, in a shape, in a confidence. So we're looking forward to the challenge, whatever will come ahead of us. So far, obviously, a game before the knockout stage, which is basically Scotland. We had a good meeting about it, and we're looking forward to do well in that particular game also. And then whatever will come in the semi-final, we will take them on. Assalamu alaikum, Hafiz. वालेकुम अस्सलाम। हफीज, किसी भी आईसीसी इवेंट में मतलब जब आप एंटर होते हैं तो एक बड़ा मैच अगर स्टार्ट में ही होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो ये चीज टीम को कितना, यानी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव, कि अगर आप हार गए एक बड़ी टीम से तो फिर उसका एक असर फिर पूरे टूर्नामेंट में रहता है, लेकिन अगर आप जीत गए तो फिर एक थोड़ा सा वो नफसियाती उस प्रेशर से टीम निकल जाती है। तो आप समझते हैं कि ये मतलब टीम के लिए एक अच्छा रहा कि शुरू में आप इंडिया जैसी बड़ी टीम जो है ट्रेडिशनल राइवल से जीत गए, और उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस ऐसा मिल गया कि जिससे फिर बाकी जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी होती गई? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी बड़े मैच में, किसी भी बड़े इवेंट में जब आपको बड़ा मैच जीतते हैं तो आपकी टीम को, आप एज एन इंडिविजुअल और एज ए टीम, आपको बहुत ज़्यादा मोरल जो है आपका बूस्ट करती है। इंडिया पाकिस्तान का गेम मैंने अपने कैरियर में बहुत मरतबा पहले स्टेज पे खेला, तो उसमें पिछले कई मैचेस में हम लोग वो पहला मैच हारे, एंड आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस के उसके बाद काफ़ी मुश्किलात आती हैं आपके ऊपर, क्योंकि इस मैच को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं फैंस की। ऑब्वियसली नेशनल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो पूरा मुल्क आपको बैक कर रहा होता है, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान गेम में ये बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सपेक्टेशन के लोड का मसला आता है। तो रीसेंट पास्ट के अंदर जब हम लोग जब कभी भी इंडिया के साथ मैच हुआ तो हम लोग जब वो नहीं जीत सके तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बर्दाश्त किए। मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा तकलीफ भी रहती है, आप डाउन भी होते हैं, आप अपने आप को लिफ्ट भी करते हैं। लेकिन आई सॉ पाकिस्तान टीम हैज़ डन अ ग्रेट जॉब ओवर द ईयर्स कि हम जब इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल के जब हम हारे भी हैं तो हमने कम बैक बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अभी इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम है, कि बड़े मुश्किल हालात में हमने ये कैंपेन शुरू की और
हम सब ने मिल के, जो यहाँ पे मौजूद हैं तमाम ग्रुप को इसका क्रेडिट जाता है कि हर एक इंडिविजुअल ने अपना रिस्पॉन्ड किया, एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट की, एक दूसरे की फील्ड के अंदर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस मैच को लेकर जब हमने इस मैच को खेला तो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, हम सब लोग रेडी थे इस मैच को लेके। परफॉर्मेंस बहुत शानदार आई, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत और कामयाबियाँ दी, और मेरी ज़िंदगी का एक प्राउड मोमेंट है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसने आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया का वो जो जिंक्स था उसको तोड़ा। सो ओवरऑल वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी क्लिनिकल विन थी। तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल बॉडी के अंदर पहले भी मौजूद था, ऑब्वियसली हमारी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो चुकी हुई थी, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उस मैच को किसी भी ऐसे बड़े मैच को जीतते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका मोराल जो है वो बूस्ट होता है। और आई थिंक अगर आप देखें उस मैच के बाद की बॉडी लैंग्वेज, उस मैच में भी बहुत शानदार थी, लेकिन उस मैच को जीतने के बाद की जो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की टीम में आई और जिस तरीके से प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू सी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करेंगे, उसमें मजीद अपने जो टॉप अप पॉइंट्स हैं उसको हिट करेंगे, ताकि जो जो इवेंट है वो सिर्फ एक मैच नहीं है, वो उस पूरे इवेंट को जीतना है। जो मकसद है, जो गोल है हमारा, वो ये है। तो हर लड़का, हर एक मैनेजमेंट का बंदा अपनी फुल एनर्जी जो है इस टूर्नामेंट के लिए दे रहा है। सो मैं समझता हूँ कि एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो आता है जब आप किसी भी बड़े मैच को जीतते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच को जीतने के बाद हमारी पूरी टीम के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, अंस सईद एंड इजाज सिंह। हफीज भाई, जिस तरह आपने कप्तानी देखी है बाबर की, तो बड़ा मुस्बत लग रहा है। कप्तानी में भी बड़े अच्छी नजर आ रही है, खिलाड़ी भी सब अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं। शुएब मलिक ने भी और हसन अली ने भी उनकी क़यादत जो है वो तारीफ की है। तो आपने भी कप्तानी की हुई है, आप क्या कहेंगे बाबर की क़यादत के बारे में? देखिए, तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। जब आप एज ए लीडर आप अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ खड़े होते हैं और आप परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर सिचुएशंस के अंदर, तो आपकी तारीफ बनती है। तो बाबर की तारीफ करनी चाहिए एज ए लीडर, जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर परफॉर्म भी किया, अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी की, टीम भी जीत रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमेशा कप्तान की जब परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं और परफॉर्म खुद खड़ा होकर परफॉर्म करता है जब कप्तान, तो उसकी वो अपनी अपनी रिस्पेक्ट भी अर्न करता है और उसके फैसलों के अंदर जो है वो मजीद बेहतरी भी आती है। सो फार बाबर आजम की जो पिछले तकरीबन एक साल के अंदर जो प्रोग्रेस है कप्तानी के अंदर, वो डे बाय डे बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। बहुत से सवालात थे उनकी कप्तानी को लेके, लेकिन आई थिंक he's changing the opinion of the people with his own good performances। और मेरा ख्याल है कि जब जब आप एज ए लीडर आप परफॉर्म करते हैं और आप सामने आके अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। सो बाबर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एज ए कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा इस टीम को लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस, अपनी जाती परफॉर्मेंस भी और टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है। हफीज भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं और पिछले 2-2.5 साल से आप उन प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्होंने मेरिट पे अपनी टीम के अंदर जगह वापस हासिल की है। हालांकि 1-2 मैचेस बुरे जाने से कोई परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो जाती। सवाल आपसे ये था कि अल्लाह करे पाकिस्तान चैंपियन बने और चैंपियन बन के आप सुरखरू हों, तो उसके बाद भी हम मोहम्मद हफीज को ग्रीन शर्ट में देखते रहेंगे, क्योंकि ठीक 1 साल बाद नवंबर में अगला T20 वर्ल्ड कप है। जी बाकी भाई, देखें, पाकिस्तान के लिए जो भी खेलता है उसको उसको अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आया है और वो उसने कहीं पे परफॉर्म नहीं किया या किसी किसी वजह से वो यहाँ पे आ गया। तो हर बंदे की जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी अर्निंग्स हैं टूवर्ड्स हिज ओन प्लेस, वो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विद द सेम टाइम जो आपने बात की मेरे अपने फ्यूचर के बारे में, तो मैं बहुत सेंटिमेंटल सा बंदा हूँ, बहुत इमोशनल सा इंसान हूँ। और जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा मेरे इमोशन जो हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं। मैं इस टूर्नामेंट को लेके, मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट को खेलना चाहता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ थी, है और हमेशा मैं ये हर नमाज में दुआ करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बन सकूँ पाकिस्तान आईसीसी इवेंट के अंदर, जो इंशाल्लाह हम लोग जीतें। तो आई थिंक उसके बहुत पास पास हम लोग पहुंच चुके हुए हैं। एज ए टीम हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर जो है वो मैंने रखा हुआ है।
मैंने अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर कभी अभी तक कोई ऐसी कुछ सोच नहीं रखी या कोई ऐसा फैसला नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप को इमोशनल करके अपने आप को अपनी अपनी एनर्जी को किसी भी तरीके से जो है वो डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूं अपनी हम्बल कैपेसिटी में रह के इस टीम के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करके पाकिस्तान को जितवाने में मैं उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। और फ्यूचर देखें, ऑब्वियसली आपने सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेलनी, मैं जितना भी खेल रहा हूँ अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करता हूँ, परफॉर्मेंस के ऊपर खेलता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वर्ल्ड कप के अंदर अपना रोल प्ले जो कर रहा हूँ उसको मजीद ज्यादा बेहतर करूँ, हम सब लोग जीतें, हम सबको अल्लाह ताला इज्जत और कामयाबियों से नवाजे। और फिर सोचेंगे जब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद सोचूंगा कि मैंने अपना अपना सफर अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए कंटिन्यू करना है या मैंने छोड़ना। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा माइंडसेट मेरे दिमाग के अंदर नहीं है कि मैंने छोड़ देना है या कंटिन्यू करना है, क्योंकि फोकस इज ऑल अबाउट टू विन द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। अतीक एंड देन मोहिशा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज भाई। हाफिज भाई, ये आपकी क्रिकेट में बड़ी नज़र है और बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि बातें ऐसी हो रही हैं कि शायद फिर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो, और अगर हो तो क्या पाकिस्तान दोबारा शिकस्त देने की सलाहियत रखती है? थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है। अपने मैं समझता हूँ कि मुश्किल प्रिपरेशन थी हमारी, क्योंकि पिछली लास्ट 3 सीरीज पाकिस्तान की वो नहीं हो सकी। जब हम वेस्ट इंडीज में गए तो वहां पे बारिश की वजह से हम लोग नहीं खेल सके, 5 मैचेस से सिर्फ 1 मैच हुआ। और फिर न्यूजीलैंड जिस तरीके से वापस चले गए, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, तो हमने आखिरी 12, 13, 14 जो भी हमारे मैचेस थे वो तो हुए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसके साथ हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, चैलेंज को एक्सेप्ट किया एज ए टीम। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हर इंडिविजुअल की जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इस मुश्किल हालात के चैलेंजेस को वो परफॉर्मेंस के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ जो है वो जवाब दे रहा है। तो मैं जाती तौर पर तो अगर आप सोचें या सॉरी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे सामने कोई भी टीम आए, हमने अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो जो भी आए, आई पर्सनली डोंट केयर अबाउट इट। और क्योंकि एज ए प्लेयर जब आप अच्छा खेल रहे हैं, जब आप अपनी एग्जीक्यूशन, अपनी स्किल्स की एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी हाँ सामने कोई भी टीम आ जाए, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहिशा बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा पता करना था जी कि ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अल्लाह करे इसी तरह ही खेलते रहें। फिर भी हमें थोड़े बहुत वीक लिंक्स बीच में लगते हैं। हसन अली की बॉलिंग टुवर्ड्स व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बेटर एंड स्ट्रांग अपोजिशन, उसमें थोड़ा सा है। और दूसरा, आप एज अ बॉलर बहुत कम हमें पूरे ओवर करते नजर नहीं आ रहे, या बॉलिंग की ऑप्शन तो छठी हमारे पास है लेकिन उसको यूटिलाइज पूरा नहीं कर रहे। और दूसरा, डीप एंड पे हमारा अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, लोअर मिड आसिफ के बाद हमारी बैटिंग एक्सपोज नहीं हुई। तो जब क्रंच मैच आता है इस तरह सेमीफाइनल या फाइनल, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हम शायद पूरे ही हमारे बैटिंग चले या पूरी डीप एंड तक जाए। तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है जी, प्लीज? देखिए, बात यह है भाई कि आप जिंदगी के अंदर हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। पाकिस्तान टीम जितना अच्छा खेल रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ, मैं जाती तौर पर, अगर आप मुझसे आपने जो सवाल किया अगर मैं जवाब दूं, तो हम सब लोग पॉजिटिव हैं। हम सब लोग अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने आ रही हैं, हम उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चाहे थोड़ी हैं या ज्यादा हैं, या कोई टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस दैट एवरीवन इज रेडी टू टेक द चैलेंज। तो एज ए टीम हर इंडिविजुअल इस टूर्नामेंट को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपनी गेम को लेके बहुत ज्यादा उसकी जो स्किल्स हैं वो उसने अपने अपने पॉलिश किए हैं, और वो इंतजार कर रहा है कि जब उसको मौका मिले वो अच्छा परफॉर्म करे। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन, रादर देन कि हम छोटी छोटी चीजों को सोचें कि ये नहीं हो रहा। तो आप जिंदगी में जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो छोटा भी बड़ा लगता है, लेकिन इतने बड़े पॉजिटिव्स हैं, हम उसके बारे में क्यों ना सोचें कि अब तक पाकिस्तान की कैंपेन के अंदर जो शानदार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो हाईलाइटेड है। दुनिया की क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट हाईलाइटेड पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है। हर एक मैच के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं तो इसको देखूंगा। वो छोटा सा माइनस पॉइंट, आई डोंट नो, मैंने कभी इसको नोटिस भी नहीं किया और ना ही मैं समझता हूँ हमें करना चाहिए,
एज ए नेशन हमें अपनी टीम के ऊपर, मैं पर्सनली तौर पर एज ए प्लेयर और एक फैन ऑफ द क्रिकेट, मैं पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट की कैंपेन के अंदर तमाम बॉक्सेस को टिक होते देख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलके एज ए टीम मजीद अपने बॉक्सेस टिक करेंगे, क्योंकि जो गोल है वो चैंपियन बनना है, वो किसी एक या दो मैचेस को जीतना नहीं था। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक तमाम प्लेयर्स रेडी हैं, तमाम प्लेयर्स अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जब भी वो मौका मिलता है हर प्लेयर आज सामने आ रहा है और वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है सामने लेके आ रहा है। That's all from Urdu medium section. Yetegi, if you have any question for English medium, you can ask. No, I'm fine. Hafiz bhai, just a short statement from you ahead of the game tomorrow, and your feelings of the World Cup in English, if we can sort of describe that. I've heard it in Urdu, but just one more round in Well, English, definitely, please. we are looking forward to the game tomorrow against Scotland. We wanted to execute our skills with lots of confidence, because at the moment everyone is very confident and playing good cricket. We wanted to continue. We wanted to hit all the boxes for this game also, to going into the knockout stage for the semis in this tournament. So looking forward to the challenge, and I'm sure that everyone will perform better in this game also, and will take more confidence into his own form and into the team form. So looking forward to the challenge. Thank you so much, everyone. Thank you. Just one last question as well. Your feelings in the camp, in the tournament as well. You've had a fantastic campaign so far. What are the feelings in the camp? Well, definitely, we all are proud on the fact, like we played a wonderful cricket so far in this tournament. Everyone responded to the challenges. As a team, we are very confident. We support each other. We respect each other's talent, and we wish everyone, like, just go out there and do well. That is something very special in this team for this campaign. Well, yes, we're playing good cricket, but the goal is not achieved yet. We as a team wanted to win this World Cup for the whole nation, and I think everyone is putting their effort into and looking forward to the challenge coming ahead of us. Thank you. All the best from all of us at the ICC for the game tomorrow and the rest of the tournament. Thank you so much. See you in Sharjah.